وزیر سپیکر ٹیک اولا ہے کی ڈولا ہاں صحیح دیکھو جب میں کہتے ہیں بندی سارے کو ڈر دن کتنے دے بندی دکھاؤ نا آوے سن صبر کرو مولی صاحب تم غصہ کیوں کرنے پہ ہو آوے دن صبر کرو آوے دن اہل حدیث دو اصول پھر میں نے کہا سی کہ جو بندے نے نہیں ہونا ہی تھے اے نہیں آتے ڈر دے آتے مولی صاحب آوے دن تھوڑا صبر تک کرو سن کیا تھی ہے تو چیزیں تھی ہے وہ دیو ماشاءاللہ یہ مولی صاحب بھی آگئے ہیں دیوبندیاں نے مولی صاحب بھی آگئے ہیں بھی اہل حدیثاں نے بھی آگئے ہیں مولوی صاحب تو آپ کو مسئلہ تھا جنا سڑا مطلب ہے تو آپ کو پتہ لگ گیا اسی کیونکہ دو طریقہ درمیان لڑائی تھی گئی نہیں وہ لڑائی بھی چنگی تھی انہوں نے مور و تلال تھی ہوتا ہے صحیح ہے ان تو سا اپنے اپنے دلائل براہین دے سو تاکہ پورا دو بجے پانی دا پانی ہو گئے مگر میں پوری دنیا مشتبہ رہے سے ان ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بیان کرے اگر تو آپ اگے ہو جاؤ تو اللہ دین تو دو رسول اطیع اللہ اطیع رسول سب تو پہلے میں سارے نو سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ جہاں کہ تسی دیکھ رہے ہو گل تھوڑے سامنے ہوئی ہے ایک مسئلے دی میں نے فون کیتا کسی نے میرے چاہن والے نے انہیں کہا کہ اتنے نا قاری صاحب کوئی مسئلہ پیش آیا سارا میں میٹنگ سی میں انہوں کہہ رہا سی کہ یار میرے کو ٹائم نہیں ہے انہیں کہا تھوڑا اتنے پہنچنا بہت ضروری ہے چلو میں کہا یار میں میٹنگ چھاڑ دیں نا تو میں آ رہا ہوں تسی اس مولوی نو بلاؤ جنہیں تو دعویٰ کیتا تے ہون آپ اتنے آ گئے ہیں ہون انشاءاللہ اسی اہل حدیث اپنا نظریہ ثابت کریں گے تے انشاءاللہ اسی اپنے نظریہ نو دلیلہ دے روشنی میں ثابت کریں گے بڑی گال ہے مولی صاحب بڑی گال بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب میں نے اپنے دوست کی بات سنی اور مجھے مسئلہ معلوم ہوا مسئلہ کچھ اس طرح ہے جماعت اہل حدیث کے ہاں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے یا نہیں جماعت اہل حدیث کے ہاں امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا لازم ہے مولانا اس لازم کی وضاحت کر دیجیے لازم سے آپ کی مراد فرضیت ہے یا وجوبیت ہے بالکل ٹھیک مولانا لازم سے مراد وجوب ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث سے جانتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ دو وجوب ثابت ہو رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کے واجب ہے کہ پیچھے قرات بھی کرے اچھا امام کے ساتھ کرے گا جی بالکل مقتدی امام کے ساتھ ہی قرات کرے گا اور ہر رکعت میں مقتدی امام کے ساتھ قرات کرے گا آپ ذرا اس پر دلائل پیش کریں آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اہل حدیث کے کتنے اصول؟ دو اصول اطیع اللہ اطیع الرسول مولانا میں دوسرے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اطیع اللہ کو چھوڑ رہا ہوں اطیع الرسول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اہل حدیث کی روشنی میں میں اپنا نظریہ ثابت کروں گا مولانا میں اپنے نظریے پر قائم ہوں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا آپ کو دلیل دیتا ہوں اطیع الرسول کے اصول پر میری پہلی دلیل صحیح بخاری شریف کھولو جس میں باب کتاب الاذان باب وجوب القرات للامام والماموم صفحہ نمبر 175 پہ یہ حدیث مذکور ہے دکھاؤ نا دکھاؤ ذرا مجھے دکھاؤ اے دیکھو یہ لکھی ہے ایسے رکھو
یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جس سے میں استدلال کر رہا ہوں، یہ الفاظ موجود ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ مولانا آپ نے اصول کی کتابیں پڑھی ہوں، پڑھی ہیں، میں انہی اصول کی کتابوں پر اپنا یہ دعویٰ پیش کرتا ہوں۔ سنیے مولانا، اس میں لفظ من آیا ہے، لفظ من آیا، لفظ من آیا، اور آپ نے اصول کی کتابیں پڑھی۔ اصول کی کتابوں میں یہ ضابطہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ من عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جب لفظ من عموم پر دلالت کر رہا ہے تو مقتدی امام کے ساتھ شامل ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ اور مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا۔ مولانا میں آپ کو کہتا ہوں، جب من عموم پر دلالت کر رہا ہے، جس طرح امام قرات کرے گا اسی طرح مقتدی بھی قرات کرے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا واجب ہے۔ مولانا اسی پر بات بند نہیں ہوئی، سنیے میں آپ کو ایک اور دلیل بھی دیتا ہوں، امید ہے آپ کے پاس جواب اس کے نہیں ہوں گے۔ سنیے صحیح مسلم کی روایت کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے آخر میں جس سے میں استدلال کرتا ہوں، مولانا سنیے، اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اقرا بہا فی نفسک۔ ماقبل کا مفہوم سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سنو، جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو، جب امام قرات کر رہا ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی ایسا وہ قرات کر لیا کرو۔ تو اقرا یہ امر کا صیغہ ہے اور وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ مولانا اس سے وجوب ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا کیا ہوا؟ واجب ہوا۔ ہم نے دلائل کی دنیا میں اپنا نظریہ ثابت کیا، امید ہے آپ کے پاس دلائل نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، ابھی میدان چھوڑ دیں، جو بچ جائیں گے وہ کرنا ہے حدیث کے کتنے اصول؟ اطیع اللہ اطیع الرسول ثابت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اہل حدیثوں کا ایک ہی کام ہے کہ عوام کو دھوکہ دینا۔ اب جو محترم نے آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت پڑھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، اور یہاں سے مقتدی کی قرات کو اس بات سے ثابت کیا کہ یہاں پر من ہے اور من عموم پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے بڑی ان کی دلیل ہے مولانا قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویستغفرون لمن فی الارض، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ زمین پر رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ من عموم کے لیے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے من کا لفظ استعمال کیا، من بولا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کفار اور مشرکین بھی شامل ہیں؟ کیا وہ فرشتے کفار اور مشرکین کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ کی اصولوں کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من عموم کے لیے آتا ہے۔ ہماری اصول کی مستند کتاب نور الانوار، اس کے اندر من اور ما کے بارے میں ایک ضابطہ لکھا ہوا ہے کہ یحتملان العموم والخصوص، من اور ما یہ دونوں عموم اور خصوص دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور مولانا آپ اس بات کو جانتے ہیں، جس چیز کے اندر احتمال آ جائے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جس چیز کے اندر احتمال پیدا ہو جائے اس سے آدمی استدلال نہیں پکڑ سکتا۔ آپ نے اتنی کمزور دلیل کیسے پیش کی اپنے نظریے کو پیش کرنے کے لیے؟ اور جو آپ نے دوسری مسلم شریف کی روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر ایک راوی ہیں علی بن عبد الرحمن، جس کے بارے میں
याहया इब्न मईन फरमाते हैं कि लैसा हदीसुहु हुज्जतुन, इसकी हदीस हुज्जत ही नहीं है। जिससे आप अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं, अपना नज़रिया उससे निकाल रहे हैं, इसके बारे में याहया इब्न मईन फरमा रहे हैं कि इसकी हदीस हुज्जत ही नहीं है। तो मैं आपके सामने मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश करता हूँ। हमारा नज़रिया ये है कि मुक्तदी का इमाम के पीछे किरात करना मकरूह तहरीमी है। मैं इस पर आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दलील पेश करूँगा। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है, किताब कुतुब खाना कदीमी की, और सफ़ा नंबर 178 पर यह रिवायत मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि इज़ा सल्लैतुम फ़ाक़ीमुस्सुफ़ूफ़ सुम्मा लियुम्मकुम अहदुकुम फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रा फ़अन्सितू। अब यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुक्तदी को इमाम के पीछे किरात करने से सराहतन मना फरमाया कि जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रा फ़अन्सितू। मौलाना अनसितू का क्या माना है? आप पीछे उसको खामोशी से सुने। अगर आपके पास हमारी इस दलील को रद्द करने के लिए कोई दलील है तो पेश कीजिए। दलील पेश करो मौलाना साहब, जल्दी करो ना, मुंह बंद करो। ये दलील होवे कुर्सी कने आपको एक के करी टेंशन नहीं गिरने दूसरा थोड़ा डराओ मत। हाँ सही है, होने दे कोई फद्दे पे टेंशन को गिरने दे। मौलाना तो गुवार निकले दे पैर पर भाई दे। ਹੁਣ तेरी मैं दलील लेवा पिया ना, अगर तोरे प्यू डाले आवने जवाब नहीं दे सकते। अगर प्यू लाती हो ਹੁਣ सही जड़ी दलील मैं पेश करना पहले तो इन्हें गुवार निकले पे भाज में अगर ये बात कबूल करे तो मैं आधा को पिया अगर तो प्यू डाला भी आवने ना सारी दलील का जवाब नहीं दे सकते। हो से दलील मौलाना उसी उसूल पर मैंने भी अपना उसूल नहीं चेंज। उसूल वही है अल्लाह इज्जत और उसूल अतीउल्लाह अतीउर रसूल। मैं अतीउर रसूल को लेते हूँ, अतीउर रसूल को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक और दलील दूँ। उम्मीद है कि इसका जवाब आपके पास नहीं हो और नहीं होगा ही। सुनिए, अबू दाऊद किताब उस्सलात हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, जिसमें ये अल्फाज मौजूद है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। मौलाना सुनो, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज पढ़ा, नमाज फजर की। उस फजर की नमाज में सहाबा पीछे किरात करते गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब नमाज से फारिग हुए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया, ऐ मेरे सहाबा, मैं गुमान करता हूँ कि तुम मेरे पीछे किरात करते थे। साहबा फरमान लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी भी कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हम आपके पीछे किरात करते रहे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। जनाब, मैं आपसे कहता हूँ वही बात आ गई। साहबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे, रोका नहीं। ये बात बताई कि वो नमाज है जिसमें किरात नहीं। अब सुनो, जिस नमाज में मुक्तदी की किरात नहीं होगी उस मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। ये बात ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा से साबित है। मैं आपसे कहता हूँ, जब हदीस में ये आ गया तो क्या मुक्तदी पर किरात करना वाजिब है कि नहीं? वाजिब है। तो मोहतरम, इस हदीस से साबित हुआ कि जिस तरह इमाम किरात करेगा मुक्तदी भी इमाम साथ किरात करेगा। मुक्तदी पर वाजिब है कि इमाम साथ किरात करे। बिल्कुल जवाब पानी दो।
मौलाना आप आते ही जज्बाती हो गए। मैं आपको आपकी सब दलीलों का जवाब दूंगा। ये जो आपने अभी दलील पेश की है अबू दाऊद की, आप इसकी सनद को देखें। इसकी सनद के अंदर एक रावी आते हैं मोहम्मद बिन इसहाक, आते हैं नहीं आते? मौलाना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी सनद में एक रावी है मोहम्मद बिन इसहाक, जिसके बारे में जिनको पूरा ज़माना जानता है, वक्त के फ़कीह हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी के बारे में फरमाया कि अगर मैं हजर अस्वद और काबातुल्लाह के दरमियान खड़े होकर इस बात पर कसम उठाऊं कि मोहम्मद बिन इसहाक दज्जालों में से एक बड़ा दज्जाल है, तो मैं अपनी इस कसम में हानिस नहीं हूँ। और आप अपना नजरिया एक दज्जाल की रिवायत से पेश कर रहे हैं। मैं आपको दलील देता हूँ अपने नजरिए की, अगर आपके पास इसका जवाब है तो लेकर आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अब अगर कोई इमाम के पीछे खड़े होकर किरात करता है तो क्या ये कुरान के हुक्म के खिलाफ नहीं होगा? मौलाना आपने जो बात की है, मैं इस पर 2 सवाल करता हूँ, क्योंकि ये जो बात आपने की है ना, इस पर 2 एतराज बनते हैं। पहला एतराज ये, आपने क्या कहा, कुरान की कौन सी आयत पेश की, बताइए जरा। वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू। सुन रहे हो ना आप? सुन रहे हैं ना? हम अभी इन पर सवाल करेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। हाँ, ये इन्हें तो प्यू डालने देवे एक ही वजह से। मौलाना और ये बात बात थी कि होने ना हमारी मेरी से बड़ी आराम। मौलाना मैं आपसे कहता हूँ, ये जो आयत नाज़िल हुई है ना, पहला सवाल ये आयत खुतबे के बारे में नाज़िल हुई है और आप इसे किरत साबित कर रहे हैं। खैरी दूसरा इश्काल भी सुनते जाइए, फिर जवाब दें। दूसरा इश्काल ये है, इस आयत में आपने कहा वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू। 2 मस्दर है, इस्तिमा और इंसात। मौलाना तवज्जो कीजिए, इस्तिमा और इंसात जारी नमाजों में तो साबित हो रहा है, सीरी नमाजों में आप इस्तिमा को कैसे साबित करेंगे? बताइए, जवाब दो। पहली बात आपने ये कही कि ये जो आयत नाजिल हुई है ये खुतबे के बारे में नाजिल है। इसके बारे में हिब्रुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नाज़लत फिल क़िरात, ये आयत क़िरात के बारे में नाजिल हुई। और दूसरी बात आपके बकौल कि अगर ये खुतबे के बारे में भी नाजिल हुई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ खुतबे के अंदर क्या पढ़ा जाता है? खुतबे में भी तो अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि यहाँ से जारी नमाजों का तो साबित हो रहा है, सीरी का साबित नहीं हो रहा, मौलाना यहाँ पर दोनों ये अलग अलग हुक्म पर मामूल है। क्या करो खड़ो सबर करो, सारी दलील तो मुंह भांडे सुनदा कोई नहीं दलील तो सारा सारा दलील ने राज की थी मैंने कोई नहीं का सोई ना मुंह बंद ऐसे होने मुंह बांध दिला। अहले हदीस के किन्ना उसूल अतीउल्लाह अतीउल्लाह अतीउल्लाह। मौलाना आपने मेरे पहले उसूल को अच्छी तरह रद्द किया। अब आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, तुसी जीत साड़ी है। हाँ ये बैठे और सही मुनाजरा करो, क्या तमाशा करती बड़ी फिजरों का किना करीना मुनाजरा सफर करो सारे अपने ना ला मौलाना फजला कहने करना आता कौन है ने असर ना को पता हराना ले नहीं वैसे तमाशा बड़ी करे। मौलाना मैं पहले उसूल को छोड़ता हूँ, अब मैं दूसरा उसूल लेता हूँ अतीउल्लाह वाला।
उम्मीद है ये जो उसूल मैं बयान कर रहा हूँ, इस पर जो मैं दलील दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक दलील दूंगा। अगर आपके अबाव अजदाद अगले पिछले नाने पुराने सारे आप मुझे जवाब ना दे सकते, सही कहना नहीं सकते मौलाना। मैं बतौर इस्तदलाल अहले हदीसों का ये नजरिया साबित करने के लिए कि इमाम के पीछे मुक्तदी किरात करता है और वाजिब है मुक्तदी पर के इमाम के पीछे किरात करे, मैं कुरान से साबित करता हूँ। कुरान क्या कहता है? ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣੇ ਨਾਲ। हाँ सही सफर करो, पानी का पीने लो। मौलाना तवज्जो कीजिए, मौलाना गाल ना करो तो सब बेटा करने बैठे। मेरी बात सुनिए, मैं अपना नजरिया साबित करता हूँ। कुरान अज़ीम वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, सबअम मिनल मसानी, सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। मौलाना सुनो, कुरान कह रहा है, आपको पता है सबे मसानी किसको कहते हैं? सबे मसानी सूरत फातिहा को कहते हैं। लोगों को पता नहीं है, हम बताएं। सबे मसानी सूरत फातिहा को कहते हैं। मौलाना मेरी बात सुनो, जरा गौर करो। जब कुरान सबे मसानी सूरत फातिहा को कह रहा है, मसानी का मतलब है कि बार बार दोहराई जाने वाली। अब सुनो, मसानी कहते हैं बार बार दोहराई जाने वाली को, ठीक है ना? और बार बार दोहराया जाए, ये कब होगा? ये उस वक्त होगा इमाम भी किरात करे, इमाम के साथ मुक्तदी भी करे, मुनफरिद भी करे। मुनफरिद को अलग करो, मसला रहा इमाम और मुक्तदी का। अगर अकेला इमाम किरात करता है, मुक्तदी पीछे किरात नहीं कर रहा, तो मसानी का इतलाक कैसे होगा? मसानी का इतलाक कैसे होगा? बस कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ, सब्र करो। मेरे मौलाना साहब मोहतरम जनाब, मैं आपको कहता हूँ, मसानी का इतलाक सूरह फातिहा पर उस वक्त होगा जब जमात के साथ जमात करा रहा हो इमाम, इमाम भी किरात करे, इमाम के पीछे वाला मुक्तदी भी किरात करे, फिर इसको मसानी पर इतलाक किया जाएगा। अगर मुक्तदी किरात नहीं करता, फिर सूरह फातिहा को मसानी नहीं कहा जाएगा। और कुरान कह रहा है सूरह फातिहा को मसानी कह रहा है, वो मसानी कहता है बार बार दोहराई जाने वाली। इससे साबित हुआ कि मौलाना जिस तरह इमाम किरात करेगा, मुक्तदी भी किरात करेगा। जवाब दो, पता लग मोहतरम, आपने कहा कि कुरान मुक़द्दस की आपने आयत पेश की और उम्मीद है कि इसके बाद आपके पास कोई और दलील नहीं होगी, क्योंकि आपका आखिरी रास्ता यही होता है, लोगों को गुमराह करने के लिए आप कुरान की आयत पेश करते हैं। मौलाना सिर्फ तहकीक इस बात पर नहीं है कि अगर इमाम भी किरात करे और उसके पीछे मुक्तदी भी किरात करे तो ये तब तो ये सबा मसानी होगी, वरना नहीं। मुक्तदी इमाम अगर पहली रकत में सूरत फातिहा की तिलावत कर ले, फिर दूसरी रकत में जब सूरत फातिहा की तिलावत करेगा तो सबा मसानी पर अमल होगी, बार बार पढ़ी जाने वाली होगी। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको कुरान मुक़द्दस की आयत से आपकी इस दलील का रद्द करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कुरान मुक़द्दस को मसानी फरमा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप नमाज में पूरा कुरान पढ़ते हैं? जवाब दे, जवाब दे, दौड़ी ना उठका। क्या आप पूरा कुरान नमाज में पढ़ते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक सवाल और भी करता हूँ कि आपके नज़दीक नमाज के अंदर मुक्तदी का इमाम के पीछे किरात करना वाजिब है। अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे रुकू में आकर मिलता है, उसने किरात तो नहीं की, उसका वाजिब छूट गया, बताओ अब उसकी किरात का क्या बनेगा? अब उसकी किरात का क्या बनेगा? अगर वो रुकू में, आप कहते हैं कि रुकू में सूरत फातिहा पढ़ ले
हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुकू में सूरत फातिहा पढ़ने से मना फरमाया। तो मोहतरम, आपने जितने भी दलाइल दिए मैंने आपके तमाम दलीलों का रद्द किया और आप मेरी एक दलील का भी रद्द पेश नहीं कर सकते। मैं आपके सामने कुछ और भी दलीलें पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अगर आपके पास उनके रद्द करने के लिए कोई चीज़ हो तो वो भी आप पेश कर दीजिएगा। सुनन नसई जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 93 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियउम्म बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अंसितू। दूसरी जगह पर यह दूसरी रिवायत है, वहाँ पर रिवायत करने वाले हज़रत अबू मूसा अशरी थे और यहाँ पर रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा हैं। यहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम सराहतन मुक्तदी को पीछे किरात करने से मना फरमा रहे हैं। आप तो इधर उधर से यहाँ कमज़ोर दलाइल निकाल कर आप अपने पीछे से अपना नजरिया पेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो मैं आपके सामने दलाइल पेश कर रहा हूँ इसके अंदर सराहतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुक्तदी को इमाम के पीछे किरात करने से मना फरमा रहे हैं। और इमाम बहकी की एक रिवायत है, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़रअल इमाम फ़अंसितू, जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश हो। मैंने आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में और हदीस की भी वो किताबें आपके सामने रखी हैं जिनको आप बार बार कहते हैं सियाह सित्ता की किताब से दिखाएं, सियाह सित्ता की किताब से दिखाएं। आपके सामने उन्हीं किताब से आपके सामने दलाइल पेश किए। आपके पास मेरी एक दलील का भी रद्द मौजूद नहीं है। मैंने आपकी तमाम दलीलों को रद्द कर दिया, लेकिन आप मेरी एक दलील को भी रद्द नहीं कर सकते। उलमाए अहनाफ उलमाए अहनाफ उलमाए अहनाफ जिंदाबाद। ये हुन जवाब नहीं था उलमाए अहनाफ दा जंग रास्ता है। तो मौलाना, हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो मसलक है, हमारे मसलक पर कुरान और हदीस की मोहर ज़ब्त है। जितने भी मैंने आपके सामने अपना नज़रिया और मसलक मैंने आपके सामने पेश किया, सब पर कुरान और हदीस की मोहर ज़ब्त है। आपके पास तो ऐसे दलाइल थे कमज़ोर और लागिर दलाइल जिनसे आप अपना नज़रिया नहीं पेश कर सके, लिहाजा आप इन सामीन को क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, फैसला काजी साहब नहीं रहेगा, फैसला करना फैसला काजी का सुन बिल्कुल सर। दोस्तों, मैंने और आपने, हम सब ने जो है मसलक अहले हदीस के मौलवी साहब के दलाइल भी सुने और इसी तरह मसलक अहनाफ उलमाए देवबंद के मौलवी साहब के भी दलाइल सुने। मेरी अपनी ज़ाती राय और इसी तरह मुमकिन है कि तुम आपकी राय भी यही होगी कि जो हक अहले हक ठहरे वो उलमाए हक और उलमाए देवबंद ठहरे। क्यों? दो वजह से। एक तो ये कि मौलवी साहब अहले हदीस साहब के जो मौलवी साहब के इन्होंने जितनी दलाइल दी सारी की सारी दलीलों का रद्द किया मौलवी साहब ने जो बंदी थे। और दूसरी वजह ये कि इन दलाइल जो मौलवी देवबंदी साहब ने दिए उन पर कुरान और हदीस की मोहर लगी हुई थी, और जिस पर कुरान और हदीस की मोहर लग जाए तो फिर उससे आगे नहीं जाना चाहिए, वो पक्की बात है। तो मेरी भी यही ज़ाती राय है और आपकी भी यही राय होनी चाहिए जो अहले हक के उलमाए देवबंद है। जी मौलवी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपका कोई इरादा चेंज हुआ है नहीं हुआ? क्या करूँ, सब उतरा है, साफ ठीक है, सारी दाढ़ी उतरी रखे की भाई जान गाल सुनो, सब ने 50 साल दे गए, सब गुमराह की रखी, सारा नमाज़ा खराब की तरी। तो इन और क्या फायदा, क्या डिसीजन नमाज़ा लूटो क्या करो? जी हाँ, सही नमाज़ तो लुटाना पड़ता। दस मौलवी साहब क्या करो, फैसला क्या करो? गाल वैसे थी एक तो भजन रास्ता करा भाज बजा ते दूजी गाल ये है कि जिवें हुण मौलाना ताहिर कलीम तौंसी साहब जिन दलाइल पेश किए हैं ना, लगता है मेरे दिल को लगे ते हुण इवें आप करने पिया तो कोई रास्ता एक है ना, वो हक उन्हें तो मज़हब यार के कुरान हदीस मुहर लगी है जिन्होंने वो हक ही हैं। असद हदीस बयान की तो मुझे कोई मुंह तोड़ जवाब देती है, मैं सारा मुंह मारते थे और मैं दही में करूँ पिछला नमाज रहना तो सब आज तक 50 साल के मेरे कुछ गिरा था कहना रह गए
ہوں کرانا چھوڑو میری گاہ سنو آپ پڑھنا سارا دیوبندی ٹھیک ہے کیونکہ دیوبندی یہ جرا مسئلہ کہ ماشاءاللہ بہترین ہے آپ نے سلام فرمایا کہ 70 فرقے پڑھ دن ایک حق تے ہو سی بات ہے ہوں جرا نا میرے کو یہ حق تے لگا پہ پھر گیا میں آدھے میں کہ نسولہ کرنا ہی نہ رول بنے وہ پیٹ پوجا پہ وال کر کے سون پاس کروں ہوں ادھے نہ رول ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر